जय माता जी। जय माता जी। आप हो गुजरात से, एग्जैक्टली कहाँ से हो? गुजरात पोरबंदर कर्मभूमि एंड जन्मभूमि। गुजरात आज भी अपनी ओल्ड जनरेशन मानता है। हम लोग इंडिया में रह के जो पैसे साल 2 साल में कमाएंगे या फिर 10 साल भी, वहाँ पे आप 4-5 साल में कमा लोगे। पहली बार आई तब अचानक से फील हुआ कि यार अकेले रहना पड़ेगा। लड़की 18 साल की हो गई, देन वो बोलते कि चलो पढ़ना पढ़ाई बड़ी हो गई, अब शादी वादी कर लेते हैं। मियाँ बीबी राजी हो तो क्या करेगा काशी। अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। उससे शादी कर लेती तो बच्चे करके घर में पड़ी हुई होती, तो शायद आज तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठी नहीं होती। तो आज हमारे साथ है एक वेरी स्पेशल गेस्ट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, जो बाय द वे रहती है अब इजराइल में, जेरूसलम में, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट everything Shilpa. Namaskar, Shalom and welcome. My name is Ravital Moses, aka Moses in Israel, your favorite Indian Jew, born and raised in India and now living in Israel. And my goal is to bridge India and Israel one video at a time. और आज हमारे साथ है हमारी खास मेहमान शिल्पा जी, all the way from Gujarat. Yes. आप इजराइल में क्या कर रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता जी। जय माता जी। एक्चुअली हमें इंडियन में बोला जाता है, ऑब्वियसली आप भी इंडियन हो, लाइक वी गुजरातीज, लाइक कर्मभूमि एंड जन्मभूमि. सो दैट मीन्स लाइक प्लेस ऑफ वेर यू बोर्न एंड प्लेस वेर यू do good things on. That was a very long journey actually, you know. Okay. Like, अच्छा, let's I'm going to guide you through your journey. Okay. आप हो गुजरात से, एग्जैक्टली कहाँ से हो? गुजरात पोरबंदर. पोरबंदर? गांधी प्लेस. परफेक्ट. और आप इजराइल में कब आए? That was like when I was 22 years old. वाओ. आप साल बताइए. 2006. भाई काफी साल हो गया. Okay. Actually, in that time I was as a caregiver. I was working like a 5 year. Then I'm go back. Then in that time I was meet someone. Okay. Then after 2 years we was talking on a Facebook, you know. Okay. And then I come to India, meet my family, and then we get married. Okay. आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? Was he, if you don't mind me asking, was he Israeli or was he Gujarati living here? He was a Israeli Jew. Oh, okay. So he was Israeli. You guys started talking on Facebook, fell in love. He came to India to meet your family. उनका reaction क्या था? Actually, they was a totally shocked because it was a very long age gap. Okay. Then they was a shocked. They don't want to accept that. But you know, जब like मियाँ बीबी राजी हो तो क्या करेगा काशी. No, I completely understand. घर वाले can be a little bit too worried sometimes, but अगर आपके लिए that was perfect, then it is perfect for you. Actually, you know, like always I was like a independent girl, like in the 17 of my age. Okay, let's talk about this for a second. तो आप पोरबंदर में पली बड़ी, correct? तो आपने आपकी स्कूलिंग, आप कॉलेज वगैरह भी गए थे, 11th-12th अपने? Yeah, I did dress designing in diploma also. खोला कवोड. Wow, all right. Okay, now I understand, क्योंकि हम इवेंट्स के बारे में भी बात कर रहे थे. शिल्पा जी बहुत कुछ करती हैं यहाँ पे. It's going to be a long list, but one of them is dress designing and anything to do with styling of Indian wear, जो हम बात करेंगे थोड़ी देर में. पर आपने अगर जस्ट, क्योंकि ये सवाल होता है काफ़ी लोगों का, आपका काफ़ी अच्छा चल रहा था इंडिया में, करेक्ट? So why did you decide to come to Israel? Actually, you know, like when you in the family is older daughter, older son. Okay, how many We siblings are you? 4 brother and sister. 4. So आप सबसे बड़ी हैं? हाँ जी, मेरे बाद एक sister है, 2 brothers है. Now they are all of them married. Okay. And they have a cute babies. Okay. And 1 boy. So Okay. it's तो feel आप like a चाची prince. तो आप सबसे बड़ी चाची हो घर में? बोल सकते हैं. But actually, you know, like Gujarat आज भी
अपनी ओल्ड जनरेशन मानता है, लाइक हु इज हियर कमिंग लाइक एज अ केयर गिवर, लाइक एवरीवन हैव हिज स्टोरी, यू नो, like they are be here, they are far from families and they make money, they make good money, but in the holidays they cannot see kids, they cannot see parents. It's hard, but they are strong, they are saying okay, we do 5 years, we earn money, and then we go to India, then we give our like kids good life, our brother and sisters. Actually ये थोड़ी सी like वहाँ पे भी मेरी सैलरी अच्छी थी. Okay, I was working in the DR Garments also after my diploma. Okay. And I did like now I have my salon. You know that. जैसे मैंने कहा शिल्पा जी बहुत कुछ करती है और हम उसके बारे में बात करेंगे. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने सोचा कि यू नो इट विल बी अ लेवल अप. अगर मैं इजराइल आऊँगी, I will earn some money, send it to my parents, send it to my siblings. Yeah, some of the family's problem, you know, like मुझे लगा कि चलो यहाँ पे जो हम लोग इंडिया में रह के जो पैसे साल 2 साल में कमाएंगे या फिर 10 साल भी, वहाँ पे आप 4-5 साल में कमा लोगे अच्छी अर्निंग में. So you can share with your brother and sister, you know. So that's it. ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, स्पेशली फ्रॉम द केयर गिवर का जो इतना बड़ा कम्युनिटी है. आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड and grateful to be meeting so many people from so many different states. And I think और ये एक common theme रहा है सबका, that आपने जैसे कहा जो वो 10 साल में अगर वो कमाएंगे इंडिया में, वो यहाँ पे they can probably earn in less than maybe 5 years. Yep, and they're able to help their families, I don't know, invest or gain some more money, और शादी में अगर पैसा डालना है for any of their personal reasons. Everyone have some of the family issue. Like if they are not married, if they are married, so after they have a responsibility of the kids, wife. That was like I was just 22 years old. Like here is in the Israel, like 22 years they are brave in the things, you know. Like मैंने वहाँ पे देखा नहीं था आउट ऑफ कंट्री जाके कि कौन सी कंट्री कैसी दिखती यार. फर्स्ट टाइम था एयरपोर्ट पे. देन जब पहली बार आई तब अचानक से फील हुआ कि यार अकेले रहना पड़ेगा, पेरेंट्स नहीं है. Then first time I go to see my parents, that was like after 3 years. Wow, तो मतलब you came here 22 and directly फिर आपने उनको देखा when you were 25. Yeah. Wow, तो मुझे कहना है there's a lot of difference. मैं good या bad नहीं बोलूँगी. जो एक इंडियन 22 year old होता है और जो एक इजरायली 22 year old होता है, काफ़ी डिफरेंस है. क्योंकि जो 22 साल का भारतीय बंदा या बंदी होती है, they are more likely to focus on their careers, ठीक है, compared to an Israeli 22 year old जो बस अभी आर्मी से निकला हुआ है, and they either plan to travel or either plan to work or either plan to then pursue their education. Yeah. बहुत stark difference है. Correct? Even in the like if you live in the India, you know, like you live in Bombay. I'm from like Gujarat. और गुजरात में काफ़ी जगह है जो आज भी वो लोग अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं, यू नो. लाइक लड़की 18 साल की हो गई, देन वो बोलते कि चलो पढ़ना पढ़ाई बड़ी हो गई, अब शादी वादी कर लेते हैं, और पेरेंट्स के हिसाब से शादियाँ करते हैं. देन कभी कभी या लाइक लड़की को भी कोई लड़का पसंद हो तो वो फैमिली को बताती है, देन इफ दे एग्री सो देन गेट मैरिड. लाइक शिदूख, we call that in our Hebrew, you know. Correct. शिदूख या मैच मेकिंग जैसे बोलते हैं हम यहाँ पे. हाँ. तो मेरा एक सवाल है, क्या आपके लाइफ में कोई था या आपको आपके मम्मी पापा ने did they tell you कि भाई अभी लड़की बड़ी हो गई है, घर की बड़ी बेटी, चलो शादी कर लो? एक्चुअली लाइक तुम्हें लगता है कि तुम आज सारी पॉलिटिक्स यहीं पे खोल देने वाली हो? मैं बस पूछने का काम कर रही हूँ. Actually, when I was 20 years old, and that time was one guy. Okay. And like you know, like old वाला प्यार, आँखों में देख के दूर दूर से. ये मोहब्बत और इश्क वाला है ये. हाँ, exact. ये सिचुएशनशिप जैसा नहीं है. नहीं. Okay. Like you never forget, you know. I understand. And बस फिर फैमिली से बात हुई.
देन फैमिली वालों ने उनकी फैमिली को बुलाया, आमने सामने बैठे वगैरह. देन यू नो सम टाइम फैमिलीज हैव ईगो आल्सो. So in that ego, who is going to born? लड़का एंड लड़की. या So that's it. उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मेरे को यहाँ पे रहना नहीं, मेरे को इसराइल जाना है. ओके Then I want to be dependent. Then I come and then get married. Okay. I come here. ओके. After 1 year, that guy get married. Oh, he got married already. I'm so sorry. No. If, you know, like, I believe that we have karma. You know, like, maybe gods don't want to I get married with that guy in that time. So, अगर शायद मैं आज उससे शादी कर लेती तो बच्चे करके घर में पड़ी हुई होती, तो शायद आज तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठी नहीं होती. So it was basically a blessing in disguise. That's truth. Okay, that's good. Okay, तो आप आई यहाँ पे 2006 में एंड ये सबको ही पता है. तो इज़राइल मोस्टली आप जब इमिग्रेट करते हो, इट इज़ फॉर जूइश पीपल लिविंग इन द डायस्पोरा, जो बाहर रहते हैं. उनको यहाँ पे घर जैसा बनाने को मिले. तो वो जो आलिया वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जूज अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे आके घर बना सके. नाउ यू केम हियर एज अ केयर गिवर, बट आपने इज़राइल को एज अ नॉन जूइश पर्सन अपने घर बनाया है. यू हैव अ कम्युनिटी, यू हैव multiple businesses, you have friends, and you have managed to now organize events. जो हम बात करेंगे, by the way, आपने अगर मेरा नवरात्रि वाला रील नहीं देखा है इंस्टाग्राम पे, दैट इज द इवेंट जहाँ पे मैंने इनको फर्स्ट टाइम मैं मिली थी आपसे, और तब से हमारी इंटरेक्शन बरकरार रही है. बट शिल्पा हैज बीन हर goal, जैसे मेरा goal है to bridge India and Israel, her goal is to bring Indian festivals and Indian events to Israel, if I'm not wrong. Yeah, that's true. Perfect. So as a non-Jewish person, आपने इज़राइल को घर कैसे बनाया? That is the very good question. Okay, like मैं बोल सकती हूँ कि मेरी और एक फैमिली यहाँ पे है. Like जब मैं पहली बार यहाँ पे आई, तब एज ए केयर गिवर एक साफ्ता का काम कर रही थी जिनका नाम था सारा. एंड दैट फैमिली वाज वेरी नाइस एक्चुअली. टिल नाउ वी आर इन द टच. लाइक शी हैव वन डॉटर, हर नेम इज सीविया. Sivia? Yeah. Okay. And now also she's stuck with me. She's come to my salon and like a sisters, you know. Like I tell you, Janmabhoomi and Karma Bhumi. exact. So I have two family. Okay. One is in Janmabhoomi. And one is here. One is here. in तो Dharamabhoomi. उन्होंने काइंड ऑफ आपको ऐसे अडॉप्ट कर लिया. Like उन्होंने उनके पास से काफी कुछ सीखने को मिला. You know, like you are here first time. Like you can see family sitting together and they say, come, sit with us, eat with us. And whenever like Sivia was go through the parlor, she say, come, you also come with me. In that time, first time, I know that I need to do laser even, you know. क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ डजंट मैटर लड़की लड़का, बट लेज़र का काफ़ी क्रेज है. या जस्ट व्हेन यू टर्न 16, आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू डू लेज़र एंड गेट रिड ऑफ देयर बॉडी हेयर, और इवन डार्क स्पॉट्स फॉर दैट मैटर. काफ़ी ट्रेंडिंग है यहाँ पे. और जस्ट द वे इट इज. हम इंडिया में कैसे वैक्सिंग करते हैं ना लड़कियाँ, या थ्रेडिंग करती है ना, वैसे यहाँ पे लेज़र का सीन है. Okay, let's talk about your business. From being a caregiver to a business owner, ये जर्नी काफ़ी क्रेजी लग रही है मुझे, और काफ़ी सारे स्ट्रगल्स भी मुझे लग रहे हैं कि काफ़ी होंगे. Would you like to throw some light on what this journey was? Don't have to go through an entire process, but जो आपके जो main highlighting struggles है या challenges हैं, Okay, उसके बारे में बात करिए. अगर सारी स्टोरी बताने बैठ जाओगी तो शायद आज का दिन ही कम पड़ जाएगा. Wait for episode 2. आप लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बता दीजिए. ओके, सो जब यहाँ पे आई, देन दैट टाइम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, देन आफ्टर जब इंडिया गई तब लाइक किसी से मिली, सो ही केम फॉर मी in India for to get married and meet my family. So उस टाइम पे like
वो जो एक होता है ना लाइक कि यार एज है तो क्या हुआ, Mm-hmm. बंदा 7 समुंदर पार करके आया है, यू नो. सो गेट मैरिड देन कम हियर देन. पता ही होता है ओल्ड वर्ल्ड में अच्छे लोग भी है बुरे लोग भी है. Mm-hmm. सो कभी कभी क्या होता है लाइक आई नेवर क्राई फॉर द बैड थिंग वट एवर गोन थ्रू इन माई लाइफ. Mm-hmm. एक्चुअली वो एक में like कुछ भी करने से पहले like whatever when I open my salon, I just give you one example. At that time I think like I am as a Indian who is come in my salon, you know. You have many salon, many Israelis. Why should they come? So I say it's okay, just open. If not work, you learn something. Mm-hmm. And if it's work, your luck. Mm-hmm. So एक्चुअली पार्लर का ये सीन था. मैंने पार्लर का कोर्स किया था लाइक बिफोर व्हेन आई कम टू इजराइल, व्हेन आई वाज लाइक 17 ईयर ओल्ड. अच्छा, आपने वो इंडिया में किया था? हाँ. ओके. बट मैंने इसको लाइक पुश नहीं दिया था. ओके. एंड आफ्टर व्हेन आई गेट मैरिड एंड देन वांट टू कम अगेन, देन आई थिंक यार अभी तो मीता पलक का काम कर भी नहीं सकते हैं ना, लाइक 24 आवर आप किसी के साथ नहीं रहोगे. एंड देन अगेन आई स्टार्ट माय स्टडी. देन अगेन आप स्टडी ब्यूटी कोर्सेज के बारे में हाँ. आप स्टडी कर रहे थे? हाँ. ओके. देन स्टडी फिनिश करने के बाद जब मैं यहाँ पे आई तब शुरू में उल्पान में जाना शुरू किया, करेक्ट. क्योंकि दैट टाइम आई नो हिब्रू लिटिल बिट. बट अगर आपको इजराइल में अगर बिजनेस चलाना है तो आपको हिब्रू सीखना पड़ेगा. सो उल्पान में जैसे ही मेरे 6 मंथ कंप्लीट हुए मुझे बोलना अच्छा खासा आ गया. देन पढ़ना भी, लिखना ऑलमोस्ट भी. चलो बढ़िया. आज मेरा उल्पान खत्म हुआ है, कल मेरी जॉब शुरू हो गई है. अच्छा. ओके. देन 3 साल सैलून में काम किए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया, हाउ इज वर्क हियर. अच्छा, तो आपने एक अलग सैलून में अपने काम उठाया, यू लर्नड हाउ द वे दे वर्क, एंड देन आपने आपका सैलून अपने चालू कर दिया. नहीं, इसमें भी एक ट्रायंगल था एक्चुअल में. चलो बताइए. लाइक हाउ वी इंडियंस गिव सर्विस in salons and here it's totally different, you know. बताइए. Like example, if we do facial, so we have all technique in India like machine, chemical as a creams and peelings and everything, and hand. Here using 2 things more, or machine and creams Okay. in the one facial, or another just hand. Hen is like henna. Hand means handwork. Oh, handwork. Handwork. Okay. सो यहाँ पे ओनिंग था तो मैं एक्चुअली हर चीज में थोड़ा सा डिफरेंट ढूंढती थी. ओके. एंड इट्स वर्क. ओके. तो आपने वो टेक्निक आपका खुद का ऐसा मिक्स वगैरह करके आपने वो आपका यूएसपी बना दिया. तो आपने कभी एस्टैब्लिश करा आपका पार्लर सैलून? आफ्टर 3 years. आफ्टर 3 years. साल बताइए. Like I was here in the Israel almost after I get married. I get married like 2016. 16. तो 3 साल के बाद. हाँ. 2019 में मैं टाइमलाइन के हिसाब से आपका जर्नी स्टडी कर रही हूँ. आई 2006 में, बाय 2016 यू वर मैरिड एंड देन इन 2019 यू लॉन्च्ड योर फर्स्ट सैलून. परफेक्ट. और एंड सिंस देन यू हैव नाउ बीन ग्रोइंग और काफी सारे क्लाइंट्स हैं आपके पास. तो दलायल. हाँ, तो दलायल. थैंक्स गॉड. ओ, मैंने बोला एकदम से हिंदी में मतलब हिंदी में क्या बोल दिया. ओके, ऑसम. इन एडिशन टू योर सैलून, मैं आपको मिली थी ये साल नवरात्रि में, जो आपने जेरूसलम में ऑर्गेनाइज करा था इन रमाडा होटल. क्रेजी. मैंने बोला रमाडा में नवरात्रि, हाउ इज दिस पॉसिबल? बट एनीवे, आई गॉट टू मीट शिल्पा एंड आई थिंक तब से वी हैव बीन टॉकिंग और ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं एंड शी इज गोइंग टू कम अप विद अ लॉट मोर इवेंट्स. आई थिंक होली का एक इवेंट करने वाले हो, करेक्ट? और एक इंडियन वेयर ट्रेडिशनल स्टाइलिंग का भी करने वाले हो आप. एक्चुअली वो जस्ट इंडियन वेयर नहीं होगा, अगर उसमें लाइक श्रीलंका एंड Kerala or Nepal, Philippine, whatever they want to join, why not? So it's mostly for the Asian countries. Asian countries. Wow, how exciting! I'm totally looking forward to it क्योंकि हम मतलब मैंने काफी लोगों से इंटरेक्शन करी हुई है, बट एक साथ एक जगह पे
एशिया से लोग हो और एक इवेंट हो, ऐसे कभी हुआ नहीं है, या मैं कभी गई नहीं हूँ. सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी द इवेंट ऑफ द ईयर इन 2026, करेक्ट? यस. ओके. हमारा जो ऑडियंस है अभी फिलहाल 70% इट इज़ इंडियन, भारतीय लोग. Okay. व्हाट वुड बी योर वन मैसेज हमें अब देख रहे हैं? Only just for the one lines, like अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है. परफेक्ट. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मोटिवेशनल लाइन, क्योंकि एज इंडियंस मुझे कभी लगता है हम बहुत स्ट्रगल करते हैं अब्रॉड. Yeah. ओके, एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इजराइल, जो मतलब इतना वॉलेटाइल हो जियोपॉलिटिकली. यहाँ पे एस्टैब्लिश करना, लैंग्वेज सीखना, यहाँ का रहना, खाना पीना, लोगों से बात करना, एंड प्लस एज इंडियन पीपल हम रेसिज्म भी काफ़ी फेस करते हैं. आई डोंट नो अगर आपने फेस कभी किया हो कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया हो. सॉरी टू आई कट यू, एक्चुअली ये इंडिया में भी है बाय द वे. नहीं, इंडिया में तो है ही. यू नो दैट ओ द सीन ऑफ द कास्ट. कास्ट को लेकर हो या कलर को लेके हो या इवन फिजिकल अपीयरेंस, ऊंचा, बटला या बाल कैसे हो, सबको लेके कुछ ना कुछ है ही. तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो हमने छोड़ दिया, बट कभी कभी एज इंडियंस हम बाहर भी वो फेस करते हैं, करेक्ट? क्योंकि हमारे अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोला जाता है, हमारे अपीयरेंस पे, या हम जैसे रहते हैं, या हम जो भी खाना बनाते हैं. तो आपको, मैंने तो फेस किया है, तो आपने कभी फेस करा है वो? That actually was a very tough when actually I was convert myself. You know, when I became a Jew. Okay. Because that was like when I finished my like journey of the as a Mithapale to work here, then I convert myself in Bombay. Okay. Here I come, they didn't get my conversion. Oh, they did not? They did not. What do you mean they did not get your conversion? They say that it's not like in our law how to do. ये एक्सेप्टेबल नहीं है. हाँ. जैसे बॉम्बे में करा हुआ है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है इजराइल में. Exact. Actually, then I convert again. यहाँ पे. Yep. That is for episode 2. Actually यार, episode 2 में तुम्हें कुछ और भी करना है क्या? हाँ करेंगे ना, मतलब कहाँ, आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ. ये तो सही बात है. अब तो मतलब हमारी कॉन्वर्सेशन तो बस शुरू हुई है. इन जनरल इन मल्टीपल एपिसोड्स तो करेंगे, क्योंकि लोगों को हम जैसे रहते हैं बाहर वो इंटरेस्टिंग लगता है हमारे लोगों के लिए. आई थिंक क्योंकि दे वांट टू नो कि जो इंडियंस रहते हैं बाहर, हाउ डिड दे बिकम सक्सेसफुल, हम भी क्या करें, हम क्या वैल्यूज़ लें उनसे कि हम भारत में वो इम्प्लीमेंट करके भारत को अच्छा बनाएं. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये स्टोरी बताएं, क्योंकि यू माइट बी अ रोल मॉडल फॉर समबडी. तो ये स्टोरी टेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रगल सबके लाइफ में हुआ है, पर कभी कभी लगता है कि यार मैं अकेली हूँ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. बट व्हेन यू सी समबडी टॉकिंग एंड सेइंग अरे ये तो मेरे जैसे ही है, आई कैन प्रॉब्ली कनेक्ट. No, actually after I get married and I divorce, I engage also. ओके. I engage someone Indians like actually वो काफ़ी सीन बहुत डिफरेंट था. लोग बोलते कि यार बड़ा हैंडसम बंदा है, इसलिए इसने इससे साथ सगाई की हुई होगी. एक्चुअली ही वाज फ्रॉम पंजाब. ओके. एंड मैंने एंगेजमेंट इसलिए की क्योंकि उसके फादर नहीं थे. ओके देयर वाज अ 2 ब्रदर एंड उनके पास लाइक भगवान ना करे हम लोग किसी को ये बोले कि उसके पास कुछ नहीं था, बट लाइक जब आप एक जर्नी पास करके आप एक जीरो से स्टार्ट करके आप जब एक लेवल पे आते हो ना, तब ऐसा बोला जाता है लाइक यू नेवर फॉरगेट व्हेन यू फ्रॉम वेयर यू कम. सो मैंने सोचा यार अगर है भगवान ने दिया है तो क्यों ना किसी को अच्छी लाइफ दी जाए. देन आई गेट एंगेज. Then that guy want to get married as well soon, but उस टाइम पे मेरी एग्जाम्स चल रही थी. ये डिप्लोमा के टाइम पे था आप बोल रहे हो? हाँ, जब यहाँ पे था मेरी डिप्लोमा के यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ. ओके. सो उसने वेट किया नहीं, उसने शादी कर ली. His loss. But ये मतलब बोलने वाली चीज़ नहीं है, मतलब कभी कभी चीज़ें डीले हो जाती हैं, बट दैट इज़ मेंट टू बी फॉर यू.
That's true. But कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइक यार मेरे साथ ही क्यों होता है. अगर ये कभी दिमाग में सोच आए ना तो सिर्फ एक ही काम करना चाहिए. हॉस्पिटल में जाओ, किसी को देखो लाइक जो बीमार है, इतना बीमार है कि वो खुद ना चल सकता है ना बोल सकता है. एटलीस्ट आप सोच सकते हो, बोल सकते हो, चल सकते हो, तो ये भी कर लोगे. Just take your time. Absolutely. I think the way she has articulated कि हम जो विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं ना 24/7 की आ रही है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान जी ने मेरे साथ ही क्यों किया, वो आई अंडरस्टैंड वो इन द मोमेंट हो सकता है, बट अगर वो आप लाइफ लॉन्ग लेके चलोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. यू आर राइट. देयर आर पीपल हु आर इन वर्स कंडीशंस देन अस. ना खा पीते हैं, ना चल पाते हैं, ना सोचने की शक्ति है. वी कैन डू दैट एंड वी आर एबल टू ओवरकम. तो I completely agree with you. Thank you. Well, that brings us to the end of this episode. काफ़ी अच्छा लगा, हमारा टाइम भी काफ़ी जल्दी चला गया because we were having a good conversation. If you want to follow Shilpa, I'm going to add her social media in the description. Go send her a DM. काफ़ी friendly है, especially the Gujju community. If you have any questions related to Israel or the Gujarati community in Israel, I think she's the right person to speak to. I think we will be back with some multiple episodes on different topics. Yes. क्योंकि बात बस अभी शुरू हुई है. But in the meantime, stay safe, watch the right content, and I will see you next time. जय माता जी. जय माता जी.